to this webinar on the topic Local Languages as Heritage of India. From depth of my heart, I welcome our guest speaker, Professor Rajneesh Kumar Shukla, the Honorable Vice Chancellor of Mahatma Gandhi International Hindi Vishwavidyalaya Wardha, for accepting my invitation to grace the occasion as a guest speaker, despite his busy schedule. Just now, I came to know that Professor Rajneesh Shukla has been nominated as a member of Executive Council by the Government of India. Congratulations, sir, and welcome to you. A warm welcome to Professor Jatashankar Tiwari, President of Akhil Bharatiya Darshan Parishad, for his kindness and acceptance to be with us as a speaker today. I welcome Professor Syed Ainul Hasan, Dean, School of Language, Literature and Cultural Studies, JNU, who has always been supportive for organizing such academic events and accepted my invitation to be one of the speakers of this webinar. Last but not the least, my warm welcome to our Honorable Vice Chancellor, Professor M. Jagadish Kumar, who has always been kind to us and source of motivation to excel in academics and has led the university to a new height. In view of this importance, of the topic local languages as heritage of India and its importance in preserving identity and culture, when I shared the idea of this webinar with our Honorable Vice Chancellor, His Highness encouraged me and agreed to be with us despite his busy schedule. Thank you and welcome to you, sir. Once again, I welcome one and all of you for being with us. Now, may I request our Honorable Vice Chancellor, Professor M. Jagadish Kumar, to inaugurate this webinar by his speech. Over to you, sir. Thank you. Thank you, Dr. Kutubuddin. Let me extend a very warm welcome to Professor Rajneesh Shukla, Professor Tiwari, and our own colleague, Professor Hassan, who is part of this event. You have chosen a very interesting title for this webinar, Local Languages as our Cultural Heritage. There is undoubtedly, in our country, for thousands of years, we have developed so many languages across the country, and there is so much of diversity and richness in these languages. There is absolutely no doubt that these languages are part of our great cultural heritage. But having said that, it is also important for us to make every effort to preserve these languages, to make sure that these languages are used in our everyday life. Not only that, we should, wherever possible, we should use these languages, especially in our education. The national education policy is very clear that the early childhood education should be imparted in the mother tongue or the local language or the language spoken where the child lives. There have been several research works that have been reported, which clearly indicate that the cognitive skills of a child are better developed when the child uses its own mother tongue or the local language. Mahatma Gandhi himself, about 100 years ago, while writing in Young India in 1921, he said that the early childhood education should be imparted in mother tongue. And he said the fact that we are trying to teach our kids in English
which is a foreign language for us, he said it is the greatest tragedy of our times. And he was so emphatic that don't even think of changing from English to the local languages or into mother tongue over a period of time. He said, you take a decision and change it within an year so that everywhere the education, at least in the early childhood education, is imparted in mother tongue. Such is the importance that Mahatma Gandhi has given to learning the local languages, to acquiring and using mother tongue in our education. Today we have three experts who work in three diverse areas. We are very, very keen to listen to them. And I once again extend a warm welcome to all the three speakers. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir, for your insightful speech and brief introduction of the topic of the webinar. Thank you so much. Now we are going to start our webinar, and our first speaker of this webinar is our honorable guest speaker, Professor Rajneesh Kumar Shukla, who is a former member secretary of Indian Council of Philosophical Research and Indian Council of Historical Research, New Delhi, nominated member of Banaras Hindu University and Haryana State Education Advisory Board. Apart from many academic and administrative responsibilities, he is also a professor of philosophy and comparative religion in Samarpurna Nanda Sanskrit University, Varanasi. He has published over more than 100 papers, books, and chapters in national and international journals. At present, Professor Rajneesh Kumar Shukla is Vice Chancellor of Mahatma Gandhi International Hindi University, Wardha, Maharashtra. May I request our honorable guest speaker, Professor Rajneesh Kumar Shukla, to share his views with us. Over to you, sir. नमस्ते। सबसे पहले मैं क्षमा चाहूंगा कि इस वेबिनार की भाषा में नहीं बोलने वाला। भाषा की कोई पाबंदी नहीं है सर, हिंदी इंग्लिश। इसीलिए वेबिनार की भाषा में नहीं बोल रहा हूँ, पाबंदी होती तो उसी भाषा में बोलता। यस। माननीय कुलपति श्रीमान जगदेश कुमार जी, मेरे अग्रज और देश के प्रथम क्रमांक के दर्शन शास्त्रियों में से एक प्रोफेसर जटाशंकर जी, प्रोफेसर अनारुल, प्रोफेसर कुतुबुद्दीन और बहुत सारे मित्र जिनके मैं नाम देख पा रहा हूं, इसलिए सबको संबोधित करूं, सबका नामोल्लेख करूं तो एक एड्रेस इसी में चला जाएगा। इससे बचने की कोशिश करता हूं। विषय बहुत मजेदार है। सबसे बड़ी भाषा कोई लोकल और कोई ग्लोबल होती है, इस पर भी एक लंबी बहस होगी। हमने मान लिया कि कुछ भाषाएं ग्लोबल हैं, कुछ इंटरनेशनल हैं, कुछ इंट्रानेशनल हैं और कुछ लोकल हैं, कुछ रीजनल हैं और कुछ लोकल हैं। ये सब कुछ मनुष्य की निर्मित है। ये भाषाओं की जो प्रकृति बनाई है, जो नेचर ऑफ द लैंग्वेजेस
as per geographical scope and jurisdiction। ये हमने जो निर्मित किया है क्या? ये मनुष्य की निर्मित है। भाषाएं मनुष्य निर्मित हैं क्या, मानव निर्मित हैं क्या? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का उत्तर जब तक नहीं मिलेगा, यदि भाषाएं मनुष्य निर्मित हैं तो मनुष्य को अधिकार है कि इन भाषाओं को नष्ट कर दें। यदि भाषाएं मनुष्य निर्मित नहीं है, सहज जात हैं, इन्नेट हैं, तो मनुष्य को इसके लिए कोई अधिकार नहीं प्राप्त होता है कि इन भाषाओं को स्थानीय और वैश्विक घोषित करें। इतना ही नहीं, हमने भाषाओं को स्वभाव के हिसाब से भी निर्धारित किया। किसी को कहा साइंटिफिक लैंग्वेज है, किसी को कहा रिलीजियस लैंग्वेज है, किसी को कहा ये तो लिटरेरी लैंग्वेज है, किसी को कहा ये पोएटिक लैंग्वेज है, किसी को कहा दिस लैंग्वेज ओनली फॉर द ओरेटरी, वगैरह वगैरह। विविध ढंग से हमने भाषाओं की पहचान की। भारतीय संदर्भ में भी विचार करें तो स्थानीय भाषाओं का तात्पर्य क्या होता है? स्थानीय भाषाओं को हेरिटेज के रूप में क्यों देखा जाना चाहिए? क्या स्थानीय भाषाएं लिविंग एंटिटी नहीं है, लिविंग लैंग्वेजेस नहीं है? किसी जमाने में इस देश में बड़े पढ़े लिखे लोगों ने कहा संस्कृत इज अ डेड लैंग्वेज। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कह रही है संस्कृत इज द पावर हाउस फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ नॉलेज इन इंडियन ट्रेडिशन। नॉलेज कमीशन एक बना था सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में, उसने भी कहा था कि जो भारत में भाषाएं हैं बहुत प्रकार की, संस्कृत और क्लासिकल लैंग्वेजेस से लेकर के और ट्राइबल लैंग्वेजेस को, दीज ऑल आर द ट्रेजर ऑफ द नॉलेज। और यह जो ट्रेजर ऑफ नॉलेज है इन भाषाओं में है, यह निकल करके बाहर आना चाहिए। ये दोनों संभव है क्या? समथिंग इज द ट्रेजर ऑफ नॉलेज एंड हेरिटेज। हेरिटेज कहने के साथ ही हमारे पास एक ऐसा बोध होता, उस बोध को मैं कहूंगा, मैं तो एक आस्थावान हिंदू होने के नाते मूर्ति पूजक हूं। मैं मूर्तियां मंदिर में भी पाता हूं और म्यूजियम में भी पाता हूं। मंदिर की मूर्तियां मुझे स्पंदित करती है, वाइब्रेट करती है। म्यूजियम की मूर्तियां चाहे वो जितनी ही कीमती क्यों ना हो, चाहे जितनी ही खूबसूरती के साथ उसमें अक्स उभारा गया हो, लेकिन वो मुझे स्पंदित नहीं करती है। देख के खुशी तो होती है। अपने पूर्वजों की इस मूर्ति शिल्प पर, आइकोनोग्राफी पर हमें खुशी तो होती है, लेकिन जो स्पंदन एक मंदिर में मूर्ति के नाम पर, भगवान की प्रतिमा के नाम पर रखी गई अनगढ़ बेढब मूर्ति को देकर के होती है, और जिस ढंग से मैं चार्ज महसूस करता हूं, वैसा मैं उस इंडिया म्यूजियम में रखे हुए नटराज की प्रतिमा को भी देखने के बाद नहीं महसूस करता, जो दुनिया में मूर्ति कला का सबसे बेहतरीन नमूना। यही हाल भाषा के साथ। जब हम हेरिटेज के रूप में भाषा को देखते हैं तो भाषा हमारे लिए खुशी का, हमारे लिए गौरव का विषय तो हो सकता है, लेकिन हमको स्पंदित नहीं करता, हमको वाइब्रेट नहीं करता।
हमको आज की जरूरतों को पूरा कर सके ये क्षमता फिर उसमें नहीं दिखती। उसका हिस्टोरिकल कल्चरल इंपॉर्टेंस तो हो सकता है, with the conservation and preservation of that very language, we can feel glory of our cultural past, but we never think that the very language is useful for our present life, our daily life. इसलिए हेरिटेज के संदर्भ में मैं भाषा का विचार नहीं करने वाला हूं। भाषाएं जब हेरिटेज हो जाती हैं तो मर जाती है। भाषाएं जब हेरिटेज हो जाती हैं तो वो ओल्ड पर्सियन हो जाती है, जिंदावेस्ता की भाषा हो जाती है। भाषा के नाम पर वो जिंदा है, पवित्रता के रूप में जिंदा है, लेकिन वो व्यवहार में नहीं है। भारत के अंदर स्थानीय भाषाओं का, छोटे समूह में बोली जाने वाली भाषाओं की चिंता स्वाभाविक तौर पर आपने प्रकट की है और पूरे देश में इस समय प्रकट हो रही है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने पूरे देश के सामने एक बात लाया कि स्वतंत्रता के बाद हमने 200 से अधिक भाषाएं खो दी। दिस इज नॉट द रियल नंबर। वास्तव में जिन भाषाओं को हमने खोया है उनकी संख्या बहुत बड़ी है। इस देश में पिछले 70 वर्षों में रिलीजियस प्लुरलिज्म की बहुत चिंता की गई, लेकिन भारत के अंदर जो रिलीजियस प्लुरलिज्म था उसके साथ ही लिंग्विस्टिक प्लुरलिज्म का भी बहुत महत्व रहा है। वेद मंत्र है, एक बहुत महत्वपूर्ण वेद मंत्र है, पृथ्वी सूक्त। उस सूक्त को कहते हैं जहां माता भूमि पुत्रो हम पृथव्याह कहा है, उसी सूक्त में कहते हैं जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी। इस धरती पर बहुत प्रकार के आस्था और गुण वाला, बहुत प्रकार की बोलियां बोलने वाला मनुष्य निवास करता है। इस बहुत्व को धारित करने वाली यह पृथ्वी हमारी माता है और हम इसके, अर्थात प्लुरलिज्म की स्वीकृति केवल धार्मिक आधार पर भारत के अंदर नहीं रही है, प्लुरलिज्म की स्वीकृति भाषिक आधार पर भी रही। यही कारण है कि भारत में बहुभाषिकता को एक ताकत के रूप में, भारत के अंदर किसी भी स्कॉलर का हम विचार करें जो हमारे ज्ञान परंपरा में प्राप्त होता है, स्कॉलरशिप की स्वीकृति उसकी इसी आधार पर हुई जब वह एकाधिक भाषाओं में विचार करता है, लिखता है, पढ़ाता है, अनुसंधान करता है। भारत के अंदर कितनी भाषाएं लुप्त हुई हैं और क्यों लुप्त हुई हैं कि हमने मान लिया कुछ भाषाएं जो है पैन इंडियन है, अखिल भारतीय है, कुछ भाषाएं रीजनल है और कुछ भाषाएं लोकल है। उदाहरण के तौर पर हमने हिंदी को राजभाषा माना लेकिन अखिल भारतीय भाषा नहीं माना। लेकिन हम राज्य की भाषा लंबे समय तक इस देश में उर्दू थी। यह सही बात है कि उत्तर के राज्यों से लेकर के दक्कन के राज्य तक राज्य की भाषा, स्टेट लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट, इस रूप में एक लंबे समय तक, यूं कहा जाए कि 1812 1813 विलियम विलफोर्स बिल के पास होने और उसके लागू होने तक उर्दू देश के बड़े हिस्से में भाषा के रूप में स्वीकार थी, तो इसलिए उसको लोकल लैंग्वेज नहीं कहा जाना चाहिए क्या? अब उसकी उत्पत्ति का जो सिद्धांत आता है वो क्या है, जिसे कहते हैं उर्दू है लश्कर सुनी बातें जो लश्कर की ज़बान से, उसी का नाम उर्दू हो गया है। कोई अरब था, कोई अदन, कोई सीराज, कोई शेरवा से, कि उन लोगों ने आपस में बातें, उसी का नाम उर्दू हो गया है।
ये विविध भाषाओं के लोगों के मिलने और उनके द्वारा डायलॉग किए जाने से एक फंक्शनल लैंग्वेज के रूप में, एक क्रियात्मक भाषा के रूप में, और आज के लिंग्विस्टिक अप्रोच में कहें तो एक क्रियोल के रूप में बाद में लोगों की प्रतिभा ने इसे साहित्य की भाषा, इसे शासन की भाषा, इसे विधि की भाषा, इसके रूप में इसको विकसित किया। तो अगर इसको स्वीकार करें तो ये दिल्ली और उसके इर्द गिर्द के हिंदी भाषी प्रदेशों में बोली जाने वाली पढ़े लिखे लोगों की भाषा है, तो ये लोकल भाषा है क्या? संस्कृत को क्या कहेंगे? कोई रीजन नहीं है जो पूरा संस्कृत बोलता हो, ये लोकल भाषा है क्या? ये नहीं बोल रहे थे उसके बाद भी ये मिटे नहीं है, ये भाषाएं जिंदा है। अरबिक भाषा इस देश में आम बोलचाल की भाषा तो नहीं है, लिंगुआ फ्रैंका तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जब से आई है तब से जिंदा है। लेकिन इस देश में सीना का क्या हुआ, बाल्टी का क्या हुआ? स्क्रिप्ट मिट गई, भाषा बोलने वाला नहीं बचा। और उसके नाते हिंदुस्तान के उन अहम हिस्सों के हिंदुस्तान होने की पहचान भी मिट गई। इसलिए स्थानीय भाषा जैसी कोई चीज नहीं होती है, भारतीय भाषाएं। भारत भूमि के अंदर बोली जाने वाली प्रत्येक भाषा प्रथमतः भारतीय भाषा है। ये इस देश में जब से सभ्यता का इतिहास प्राप्त होता है तब से यही स्वीकृति। भारत के अंदर इसके आधार पर ही मनुष्य की पहचान होती रही है। अब कोई तमिल है तो भारतीय नहीं है क्या? अगर तमिल भाषी होने के बाद भी भारतीय है, मलयाली होने के बाद भी भारतीय है, तो मलयाली भाषा, तमिल भाषा, यह भारतीय भाषा क्यों नहीं? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। ग्रियर्सन के उस सर्वेक्षण के आधार पर, जिसके आधार पर भारत के अंदर 1800 से अधिक प्रयोज्य भाषाएं, 2900 से अधिक भाषाएं और 4000 से अधिक उपभाषाओं का जो एक बड़ा सर्वेक्षण निर्मित किया गया था, यह भारत के मूल स्वरूप में विभाजनकारी दृष्टि को उत्पन्न करने वाला। अब लिथुआनिया नाम का छोटा सा देश है पूर्वी यूरोप में, 15 लाख उसकी आबादी है। 15 लाख आबादी वाला लिथुआनिया अपनी भाषा बोलता है, अपनी भाषा में व्यवहार करता है। अब उसको लोकल लैंग्वेज कहेंगे या उनकी नेशनल लैंग्वेज कहेंगे? लिथुआनिया जैसे देश उत्पन्न ही इसीलिए हुए कि उनकी भाषा की स्वीकृतियां स्थानीय भाषा के रूप में हुई। जिस राष्ट्र, जिस समाज के वो हिस्से थे, उस हिस्से में उन देशों की स्वीकृत नहीं बन गई। बाल्टिक समूह के बड़े देशों की यूरोप में यही स्थिति। भारत में जब हम हेरिटेज की बात करते हैं तो वस्तुतः भाषाओं का संग्रहालय बनाना चाहते हैं। नई शिक्षा नीति जो भाषाएं मर गई हैं उनको भी पुनर्जीवित करना चाहती है। भारत की यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, और भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिन भाषाओं में शिक्षा देना चाहती है, जिन भाषाओं के माध्यम से मनुष्य निर्माण का उपक्रम चलाना चाहती है, वो सभी भाषाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की राष्ट्रीय भाषाएं। वो संख्या में कम बोलने वाला होगा। जब हम लोकल लैंग्वेज कहते हैं तो वास्तव में वो संख्या में कम बोलने वाला हो जाता है।
तो क्या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को स्थान नहीं मिलना चाहिए, उसको हेरिटेज हो जाना चाहिए? आज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के साथ हो रहा है, कल रिलीजियस माइनॉरिटी के साथ होगा। डेमोक्रेसी तो इसी रास्ते चलेगी। इसलिए नई शिक्षा नीति ने स्पष्टतः स्थानीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की बात। स्थानीय भाषा की वहां का तात्पर्य है बच्चा अपने घर में और अपने परिवेश में जिस भाषा में बातचीत करता है, जिसमें वह सामान्य अनुभव सीखता और व्यवहार करता है, वह स्थानीय भाषा। अब इस दृष्टि से हिंदी विविध प्रकार की स्थानीय भाषा है, क्योंकि अभी 2011 के सेंसस पर सारा काम चल रहा है और उसमें मात्र 55 करोड़ लोग हिंदी भाषी हैं। सेंसस में हम मातृभाषा लिखते हैं। वास्तव में इस देश में हिंदी जानने वालों की संख्या, अब जगदेश कुमार जी भी हिंदी जानते हैं, लेकिन जब इनको सेंसस में अपनी मातृभाषा लिखनी होगी तब तो ये मातृभाषा के रूप में हिंदी नहीं लिखेंगे। तो इस देश में हिंदी जानने वालों की संख्या 110 करोड़ से अधिक है, जिनकी दूसरी भाषा के रूप में, तीसरी भाषा के रूप में, व्यवहार की भाषा के रूप में और कभी कभी प्रथम भाषा के रूप में, किंतु मातृभाषा नहीं, इस रूप में हिंदी की स्थिति है। कुछ लोगों ने बिहारी लिखवा दिया, कुछ लोगों ने भोजपुरी लिखवा दिया, कुछ लोगों ने हरियाणवी लिखवा दिया, कुछ लोगों ने पहाड़ी लिखवाया, कुछ लोगों ने मारवाड़ी लिखवाया, कुछ लोगों ने राजस्थानी लिखवाया, कुछ लोगों ने मेवाड़ी लिखवाया, कुछ लोगों ने मेवाती लिखवाया। इस प्रकार से मातृभाषा के रूप में हिंदी की उपभाषाओं को लिखने वाली संख्या है 15-20 करोड़ आ गई। ब्रज और मैथिल, भोजपुरी, अवधी, इसका बड़ा संसार। यह इस देश में एक भय के कारण से हुआ, क्योंकि 70 वर्षों में लगातार कम संख्या में बोले जाने वाले लोगों के बोली जाने वाली भाषाएं, कम लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं मिटती चली गई। पहले उनकी लिपि मिटती है, उसके बाद उनका साहित्य मिटता है और उसके बाद उनका बाजार मिटता है और अंत में पूरी तरह से भाषा समाप्त हो जाती है और हेरिटेज बना करके रख दी जाती है, जैसे सीना और बाल्टी के साथ कश्मीर में हो रहा था। जैसा नागालैंड के इलाके में नागामी के साथ हुआ है। 27-28 ट्राइब्स की भाषा को मिला करके वहां के लोगों ने एक आपस में संवाद की भाषा विकसित की, जिसे नागामी कहते थे, लेकिन उसे राजनीति के कारण संवाद की भाषा नहीं माना गया, राजकाज की भाषा नहीं मांगा गया, वहां अंग्रेजी हो गई। अब हेरिटेज के संदर्भ में विचार करने के बजाय हमें भाषाओं को जीवन के रूप में विचार करना। स्थानीय स्तर पर जो भाषा बोली जा रही है, जो व्यवहार किया जा रहा है, वो हेरिटेज नहीं है, वो वाइब्रेंट लिविंग कल्चर है। हेरिटेज से हर्मिट तक जाना पड़ेगा। तो हम हर्मिट तक लैंग्वेज न जाए, इसके लिए उसे हेरिटेज मानने से इनकार करें और हेरिटेज न बनने दें, यह एकमात्र। तो लैंग्वेज मैनिफेस्ट द हेरिटेज, बट लैंग्वेज इटसेल्फ कांट बी हेरिटेज। इस दृष्टि से विचार करना मुझे लगता है आज के कालखंड की आवश्यकता है। भारतीय भाषाओं की एक बहुत बड़ी ताकत है, उस ताकत को पहचानने की जरूरत है। विज्ञान का, तकनीक का, लॉजिक का, मैथमेटिक्स का, इन सब का के लिए अगर पारिभाषिक पदों की जरूरत होती है, टेक्निकल टर्म्स की जरूरत होती है, तो ये जो हमारे दिमाग वाली अंग्रेजी नाम की अंतरराष्ट्रीय भाषा है, ये लेटिन की ओर देखती है। आज भी लेटिन मर गई भाषा है, लेकिन पूरा जरिस्प्रूडेंस, पूरा का पूरा साइंस, वो लाइफ साइंसेज हो या फिजिकल साइंसेज हो, यह अपनी तकनीकी पदावली के लिए, टेक्निकल टर्म्स के लिए, जिसको हम आइडियल लैंग्वेज के रूप में समझते हैं, लेटिन की ओर देखती है। भारतीय भाषाएं अपने पैरों पर खड़ी हैं और वह देखती हैं तो उन भाषाओं की ओर देखती हैं जिनसे वह उत्पन्न हुई हैं और 70% तक समान।
लैटिन और अंग्रेजी के बीच कोई समानता नहीं है अगर तकनीकी पदों को हटा दिया जाए। और विधि शास्त्र में अगर अंग्रेजी लिखी जा रही हो तो उसे अंग्रेजी मानना असंभव हो जाए, लेकिन उसके बाद भी अंग्रेजी सरल लगती है। 1903 तक उनके यहाँ विज्ञान और तकनीक की भाषा, दर्शन की भाषा वो नहीं विकसित हुई थी। प्रोफेसर जटाशंकर जी है, इसलिए कहने की हिम्मत भी जुटा पा रहा हूँ। 1903 के पहले फिलोसफी ब्रिटिश भी ये मानते थे कि अंग्रेजी में नहीं हो सकती है, इसलिए उन्होंने ऑथेंटिकली फिलोसफी की पहली किताब 1903 में जॉर्ज एडवर्ड मूर की प्रिंसिपिया एथिका को स्वीकार किया। और उस समय तक उनका फिलोसॉफिकल लैंग्वेज की दृष्टि से भाषा दारिद्र्य इतना था कि टाइटल लैटिन से ही लेना पड़ा, प्रिंसिपिया एथिका, अंग्रेजी का टर्म तो नहीं है। लेकिन एक जिद के साथ कि हम एक लिंगुआ फ्रैंका विकसित करेंगे और उसे लैंग्वेज ऑफ नॉलेज के रूप में डेवलप करेंगे। ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया, अपने यहाँ डेवलप किया और दुनिया के तमाम देशों में डेवलप किया। ये प्रयोग सबसे पहले उन्होंने भारत से ही शुरू किया। विज्ञान और तकनीक की पढ़ाई, हायर एजुकेशन अंग्रेजी के माध्यम से उन्होंने भारत में 1857 में प्रारंभ किया। तब तक वो अपनी यूनिवर्सिटीज में इसको माध्यम के रूप में स्थापित नहीं किया, इसलिए कि यहाँ की भाषाओं को अवतर दिखाना था। तो कहा कि संस्कृत डेड लैंग्वेज है, अरबियन आक्रमणकारियों की भाषा है, हिंदी ये तो संतों की भाषा है, कविता कहानी करने की भाषा है, शेष इंडियन लैंग्वेजेज जितने छोटे छोटे हिस्से में बोले जाते हैं कि इनके आधार पर पूरे भारत का विचार नहीं हो सकता है, इसलिए हम गोरे लोगों की भाषा उपयोगी भाषा है। सिद्धांत के आधार पर उन्होंने अंग्रेजी को, जो भारत के अंदर किसी भी रीजन की भाषा, कुल अंग्रेजी बोलने समझने जानने वालों की संख्या आज भी मातृभाषा के रूप में कितने लिखा है तो चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन वस्तुतः वो तमिल बोलने वालों से कम है। लेकिन वो लोकल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि वो स्टेट लैंग्वेज है, डोमिनेंट लैंग्वेज है, कल्चरल हेजिमोनी का लिंग्विस्टिक टूल है। इसलिए भारत के अंदर कल्चरल हेजिमोनी जैसी अवधारणाएं कभी नहीं रही, क्योंकि भाषा संस्कृति के निर्माण का, मनुष्य की पहचान का, मनुष्य के स्वाभिमान का, उसके जीवन का साधन रहा है, और वो स्थानीय भाषाओं के माध्यम से होता रहा है। इसलिए ईश्वरोपासना के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग भारत की विशिष्टता है। वो एक जगह है जहां पर किसी प्योर लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, सैक्रेड लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, लेकिन भारत वह देश है जहां उपासना के क्षेत्र में भी स्थानीय भाषाओं का प्रयोग, वो क्लासिकल ट्रेडिशन में भी हुआ है, संस्कृत के ट्रेडिशन में भी साबर मंत्रों के रूप में हुआ है। यहां तमिल संतों की वाणी पूरे भारत के अंदर विशिष्टा वैद के और भक्ति के बोध के दार्शनिक सिद्धांत के रूप में स्वीकृत रही है। यहां पिंगल और परहंस समझी जाने वाली भाषाओं में संत कवियों ने कविताएं की है। इसमें मुसलमान रसखान स्थानीय भाषा में कविता करता है और अंत में मुसलमान रहते हुए भी हिंदू परंपरा में संत के रूप में पूजित होता है। भारत में भाषा कम समुदायों में बोली जाती है, लेकिन स्थानीय नहीं है, उसका हमेशा एक लोकोत्तर चरित्र है, ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है। भारतीय संस्कृति को भाषाओं के आलोक में जब देखना होगा तो हम एक ट्रांसेंडेंटल फॉर्म के रूप में ही देख सकते हैं, एक इटर्नल कॉन्सेप्ट के रूप में ही देख सकते हैं, ज्ञान की निर्मित और ज्ञान के विस्तार के मनुष्य द्वारा सहज उपलब्ध साधन के रूप में भी देख सकते हैं। और सभी स्थानीय भाषाओं में एक दूसरे के प्रति ऐसी पूरकता है कि जिसके आधार पर भारत नाम के बहुत्ववादी, सांस्कृतिक भाषिक बहुत्ववादी
सांस्कृतिक राष्ट्र की निर्मित होता है, जो आसेत हिमालय, हिमालय से लेकर के और कन्याकुमारी तक एक राष्ट्र एक जन के रूप में अपनी इस भाषिक वैविध्य को स्वीकार करते हुए भी उभर करके आता है। इस जो नेशनल इंटीग्रिटी है, राष्ट्रीय एकता है, इसकी स्वीकृति स्थानीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा करते हुए भारत के संदर्भ में यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तुत करती है। मुझे लगता है इस आलोक में देखा जाना चाहिए। मैंने निर्धारित समय से थोड़ा ज्यादा समय लिया है, इसके लिए अध्यक्ष जी से क्षमा याचना करते हुए अपनी बात को पूरा करता हूँ। नमस्ते। धन्यवाद सर, आपने कितनी सुंदरता के साथ अपनी बात व्यक्त की। ये चाशनी, ये मिठास और ये मधुरता, ये हमारी हिंदुस्तानी भाषा में ही पाई जा सकती है, जिसमें आपने अपनी बात रखी और बहुत विस्तार के साथ और दिल को छू लेने वाले शब्दों में भारत की संस्कृति एवं भाषाओं के बारे में आपने बताया। यकीनन इससे हमारे श्रोता प्रेरित हुए होंगे। हम आपके दिल से आभारी हैं। Now our next speaker, Professor Syed Ainul Hasan. He is a poet, writer, and senior professor of Persian language at Center of Persian and Central Asian Studies, School of Language, Literature and Cultural Studies, JNU. He has a specialization on Indo-Iran relations, literature and cultural studies, and Indology. He has published a good number of original and translated books and research papers in English, Urdu, and Persian languages. He was awarded President of India Certificate of Honor Award in 2017. At present, he is Dean of School of Language, Literature and Cultural Studies, JNU. Sir, over to you. Thank you very much, Honorable Professor M. Jagdish Kumar, VC JNU, VC Professor Rajneesh Shukla, Professor Jatashankar Tiwari, and of course, organizer of the seminar, webinar, Dr. Kutubuddin. Now, first of all, let me admit that the way Professor Shukla spoke about the heritage, I enjoyed and learned both. So many things from him. But yes, the question remains, to what extent the heritage can be defined? It is up to the scholars to decipher. But in the world of communication, science, and art, the role of language acquisition cannot be overemphasized. And with the advent of machine-aided communication, now we see large number of translations through a device and translation systems. The language, its acquisition, and the mechanism of learning the language has acquired greater importance. The problem of development of basic understanding of language for human beings, as it was told by Professor Shukla, gets complicated due to a large number of variables which govern the phenomenon of language acquisition. And one of the recent added dimensions that have become another source of complexity